My friend almost cancelled his wedding 2 weeks. 2 weeks before the big date. Deposits paid, hall booked, outfits tailored, relatives already posting countdown stories like 14 days to go, 13 days to go. And at night, 1 a.m., he calls me and he's like, Sonali, I think it's over. And I'm like, bhai, what happened? Like, just tell me what happened. Hello, guys. Welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well and are also in good health and wealth. If you're new here, hi, my name is Sonali. And if you're old, well, you know who I am. I know I'm posting after 5 to 6 days. Trust me, I know I promised I'm going to be more consistent. But let me just tell you that 2026 is a very interesting year for me so far. I feel like न्यू ईयर में ना मैंने क्या किया था पता है क्या, मैंने वो ग्रेप्स खाया था टेबल के नीचे, वो जो भी वो फ्रेंच रिचुअल है, एंड मैंने ना बहुत सारी चीज़ें लिखी थी एंड उसमें से एक ये था कि मैंने ये विश किया था कि वॉट एवर इज नॉट meant for me, okay, whatever is not meant for me or is draining my energy, or if that is not serving my purpose, either kick me out of that situation or pull those people or those things out of my situation. February has been a very interesting month for me and trust me, मेरे को अभी तक समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है मेरे साथ, and that's why I'm going a bit crazy. I'll definitely do a story time later on when things are fine, but right now I'm not in a situation to talk about that. तो उसके वजह से मैं थोड़ी inconsistent हूँ, but I'm trying my best to be normal, to put on a happy face and just be active here for myself as well as for my subscribers. So really sorry that मैं एक्टिव नहीं थी. आज की जो स्टोरी है, इट्स अबाउट माई फ्रेंड एंड when he called me at night 1 o'clock, एक तो मैं रात को किसी का फोन उठाते ही नहीं हूँ, but when he called I was really scared. I was like, भाई what happened, did somebody go ऊपर या फिर what happened करके. तो जब मैंने फोन उठाया उसने मेरे को बोला कि यार सोनाली it's over like I'm breaking up, like मैं end कर रहा हूँ, ये हम लोग शादी नहीं करने वाला है. I'm like okay what happened. तो मेरे दिमाग में instantly जब भी people end relationship सबसे पहले दिमाग में ना आता है किसने किस पे cheat किया क्या. Okay, अगर cheat नहीं किया तो who stopped putting efforts, who started taking home for granted, तो I started asking these questions कि भाई what happened, tell me. And जब उसने मुझे पूरा story narrate किया and when he told me the whole situation, I was like, bhai, what is wrong? What is happening? Why do people in 2026 still have this patriarchal mindset where they are conditioned to believe that, certain thoughts, certain restrictions, certain impositions are really good for people? What about freedom? What about your independence, So we're going to call my friend, what can we call? मेरे को ना इस बार interesting names देना है so that the story is so like, it's such a headache story, so at least the characters का name should be interesting, right? We're gonna call the guy Viru and we're gonna call his to-be wife, we're gonna call her Basanti, ठीक है? Viru and Basanti, perfect, चुम्मेश्वरी, ठीक है? So Viru and Basanti में कितना बारे नाम बोलने वाले ना मुझे हंसी आने वाली है, but it's okay. Let's focus on the story. So Viru and Basanti, इनका love cum arranged marriage setup था. They met each other at office, इन लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे or something like that, and then they were like 6 months इन्होंने date wait किया and they belong to the same caste, so then it was very easy for them to tell their parents, convince them and everything. Parents भी सोचे कि चलो भाई जात में हो रहा है, and हमारे इंडियन पेरेंट्स का तो वही माइंडसेट है ना, शादी है तो जात में करने का, भाई जात के बाहर नहीं जाने का, टिपिकल माइंडसेट रहता है. सो द पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि यार वाओ यार जात का लड़का पकड़ा, जात की लड़की पकड़ी एंड एवरीथिंग. सो दोनों पार्टीज वर वेरी हैप्पी एंड चट मंगनी पट ब्याह वाला सिचुएशन हो गया था. दे गॉट एंगेज्ड एंड एवरीथिंग. पिक्चर्स वो रहता ना इंस्टाग्राम में डाला, हिच्ड फॉरएवर हैशटैग, वो सब चल रहा था, ठीक है? तो ये सब होने के बाद एंड I have met them a couple of times together. Like I obviously, वीरू तो मेरा फ्रेंड है बट बसंती को मैं इतना बार मिली नहीं हूँ, तो यूजुअली जब मैं बसंती को मिलती थी मैं उन दोनों को साथ में मिलती थी, ठीक है? एंड दे सीम लाइक अ वेरी कंपैटिबल कपल. उनका माइंडसेट भी काफी मैचिंग था एंड देयर थॉट्स ऑन lot of stuffs were like very similar, and opposites do attract, but I feel when it comes to wedding वो थोड़ा mindset alignment बहुत जरूरी होता है because it's not a fairy tale, ठीक है? तो wedding preparation start हो गई थी. He was pretty excited when he used to go shopping with her. जो भी choices करना होता था तभी वो बहुत खुश रहता था because he was like I'm going with my होने वाली बीवी, and वो शादी का जो excitement है ना दोनों में है, ठीक है? So for me they seem like a pretty sorted couple and
को समझा ही नहीं कि भाई व्हाट हैपेंड. सो व्हेन ही कॉल्ड मी दैट डे एट रात के 1 बजे, आई वाज लाइक रियली स्केर्ड कि व्हाट कुड पॉसिबली गो रॉन्ग. तो मैं अलग अलग अजम्पशंस बना के उसको बोल रही थी कि क्या किसी ने तूने उस पर चीट किया क्या, या उसने तेरे पे चीट किया, क्या इशू है, आर यू नॉट पुटिंग इनफ एफर्ट्स, इज शी टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, लाइक टेल मी व्हाट इज हैपनिंग. एंड जब उसने वो मुंह खोला अपना, ठीक है, अपना वो गटर जैसा मुंह उसने खोला एड़े ने, एंड उसने जब मुझे बोला कि क्या हुआ, आई वाज लाइक भाई तू क्या थोड़ा छूतिया भी होता है क्या, मतलब मेरा दिमाग सटक गया. ठीक है, ही लिटरली टोल्ड मी, सोनाली हमारा एक चीज पे डिस्कशन हुआ था एंड वी डिड नॉट अग्री देयर एंड हेंस वी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द वेडिंग. एंड मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई ऐसा क्या ही हो गया, होता है डिसएग्रीमेंट्स होता है, यू नो, मैरिज इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एडजस्टिंग फॉर ईच अदर, बट इतना भी एडजस्टमेंट नहीं करना कि तुम्हारा लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगी. ये इतना लेवल का एडजस्टमेंट नहीं करना है. वी आर नॉट ट्राइंग टू represent our parents here, right? Because this is a new generation, this is a improved generation. ठीक है, तो ये मेरे को बोलता है, you know what सोनाली, मैंने उसको बस नॉर्मली पूछा कि आफ्टर मैरिज व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट कीपिंग माय सरनेम. एंड तभी मैं ऐसा हो गई, मैंने बोला हे भगवान, क्यों 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 पूछने गया तो, बट फिर भी आई वाज लाइक यू नो व्हाट, बी पेशेंट, जस्ट लिसन टू द स्टोरी. देखो क्या बोलता है. मेरे को बोलता है सोनाली, मैंने उसको बस इतना पूछा कि यू नो बसंती आफ्टर मैरिज विल यू कीप माय सरनेम. एंड बसंती भड़क गई उस पे, राइटफुली सो, एंड शी लुक्ड एट हिम एंड शी वाज लाइक हाउ डेयर यू आस्क मी टू चेंज माय सरनेम, तो होता कौन है मेरे को मेरा सरनेम चेंज करने बोलने के लिए. एंड शी लाइक गॉट वेरी अग्रेसिव, सुनाई उसको गाली वाली चार दी, एंड वहां से सीधा उठ के चली गई हो. He felt, हाँ दिस माइक ना, he felt so insulting कि भाई मैंने बस एक proposition रखा एंड ये मुझे इतना गाली गलौज सुना के मेरे पूरे खानदान को गाली सब देके गई. How can I marry a woman who does not respect me? And she was like, how can I marry a man who wants me to change my surname? Now let me think about it in a neutral perspective. ये छूतिए को कुछ जरूरत नहीं था उसको पूछने का कि सरनेम चेंज करो एंड एवरीथिंग, लाइक हु द हेल गिव हिम दैट राइट. बट इस येड़ी को भी थोड़ा सिचुएशन को शांत से ये करना चाहिए था. लाइक शी शुडंट हैव रिएक्टेड, शी कुड हैव जस्ट बीन लाइक यू नो व्हाट, नो फक ऑफ, आई एम नॉट गोना डू दैट, एंड जस्ट वॉक द फक आउट इंस्टेड ऑफ जस्ट ड्रेनिंग हर एनर्जी ऑन दिस लूजर. क्यों इतना झगड़ा करके खुद का एनर्जी वेस्ट की, मेरे को समझ में नहीं आता. लाइक आई हैव नो इशू दैट शी डिसरेस्पेक्टेड हिम, ही डिजर्व डिसरेस्पेक्ट, ही डिजर्व चप्पल. वो मेरा दोस्त है, उसकी परमिशन से मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, बट ही डिजर्व दैट एट दैट पॉइंट. ओके, तो आई एम नॉट सेइंग उसको सुनाना नहीं चाहिए था, बट खुद का एनर्जी क्यों ड्रेन करना है ऐसे गधों के लिए. ठीक है, एंड देन दे वर लाइक यू नो, दोनों अपने अपने फैमिलीज में जाके बोले कि यू नो व्हाट, आई कांट मैरी दिस वन, आई कांट मैरी दैट one, and then they were like हाँ हम शादी तोड़ देंगे. ठीक है, and then they both meet one final time to discuss it maturely after they both cooled down. मैं वहां पे ही उसको बोली कि भाई वीरू तू थोड़ा पागल वागल है क्या, लाइक व्हाई वुड यू एक्सपेक्ट हर टू कीप योर सरनेम. ही इज लाइक नहीं सोनाली, आई नो हाउ इट साउंडेड व्हेन आई आस्क्ड हर, बट मेरा वो इंटेंशन नहीं था. मैंने बोला क्या इंटेंशन था फिर. बोलते कि यार मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब अभी सपोज अगर वीरू का सरनेम है मल्होत्रा, तो ही वाज लाइक मुझे अच्छा लग रहा था टू हियर बसंती मल्होत्रा और मिसेस मल्होत्रा. तो मैं बस वही इंटेंट से पूछा कि वुड यू माइंड कीपिंग माय सरनेम, एंड अगर वो ना बोलती तो मैं उसको फोर्स तक नहीं करता. मेरे को बस उसका पर्सपेक्टिव जाना था ऑन दिस होल थिंग, बिकॉज कल शादी के बाद बहुत सारे जगह पे, ऑल्दो इट्स नॉट लीगली रिक्वायर्ड नाउ टू चेंज योर सरनेम, बट आई फील प्रॉपर्टीज खरीदने का टाइम या फिर जो भी लीगल, जो भी चीज करने के लिए लीगल प्रोसीजर लगता है, आई थिंक दैट्स व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ का सरनेम सेम होना चाहिए. मैंने ऐसा सुना है, बट आई डोंट नो कितना इसमें सच्चाई है. इफ यू नो समथिंग बेटर प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. तो ही वाज लाइक, मैं बस उसको पूछा बिकॉज आई नो कि शादी के बाद बहुत सारे सिचुएशंस में सरनेम सेम होना बेटर होता है, बिकॉज जब सरनेम्स अलग अलग होते हैं, इफ शी हैज हर मेडन नेम एंड मेरा तो मेरा ही सरनेम है, तो बहुत सारे वहाँ पे इश्यूज होता है, एंड देन बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रूफ वाले सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. तो इट्स लाइक अ वेरी हेल ऑफ अ थिंग, यू नो. तो उससे अच्छा इट वुड हैव बीन इफ हम लोग का सरनेम सेम होता. मैंने लगी ठीक है ये भी सही है, तो तू उसका सरनेम क्यों नहीं रखा. इट्स जस्ट अ सरनेम राइट, एंड व्हाई डिड यू नॉट कीप हर सरनेम. तब उसका कंडीशनिंग झलक झलक के आया. ठीक है, एंड ही वाज लाइक बट सोनाली इतने सालों से, इतने सेंचुरी से, इट्स ऑलवेज अ वुमन हु कीप्स अ हस्बैंड्स नेम. आई एम लाइक या, एंड इट इज अ वेरी स्टूपिड patriarchal mindset, it's a very stupid condition or a rule. आजकल ये सब कोई नहीं करता. He's like exactly I know आजकल ये सब कोई नहीं करता है, बट मेरे माइंड में वही था कि आगे जाके अगर वो और मैं कुछ जॉइंट नेम में कुछ लोन लेते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं, आई वांट दैट प्रोसेस टू बी स्मूथ. तो हमने ओके यू वांट द प्रोसेस टू बी स्मूथ, तू उसका सरनेम रखना, क्या प्रॉब्लम है, तू रख उसका सरनेम. तब वो चुप बैठा. तब ही वाज लाइक
अरे यार, मैंने ना कि देखा, अब जब मैं तुझे इतना अच्छे से बोल रही हूँ उसका सरनेम रख, उसका सरनेम रख, कुछ तो तुझे अजीब फील हो रहा है ना, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अरे यार, बहुत सालों से women have been keeping their husband surname, पर तुझे कितना कितना अजीब लग रहा है ना, क्यों अजीब लग रहा है देखो, तो मेरे को बोलते कि नहीं बिकॉज मेरा सरनेम है ना, ये मेरा सरनेम मल्होत्रा है ना, एग्जैक्टली, और उसका सरनेम होगा, नाउ लेट्स क्रिएट हर सरनेम मेहरा, ओके, मल्होत्रा मेहरा, तो मैंने कहा हाँ, तो उसका सरनेम मेहरा है। एंड आई एक्सप्लेन हिम, मैंने बोला कि भाई तू इतना बड़ा घोड़ा है, तू मेरे को कोई समझाने की जरूरत नहीं है, बट योर सरनेम इज योर आइडेंटिटी, राइट? योर चाइल्डहुड मेमोरीज, योर स्कूल memories, your college memories, your work memories, everything is attached with your surname, and you can't just change your surname in a blink of an eye, just because your partner asked you to, or he kept that proposition. It's like changing your identity. I cannot emphasize on this enough, but I feel like जब तुम्हें कोई पूछता है कि तुम्हारा surname change करो, तुम्हारा dressing sense change करो, I understand why it is difficult for women, especially because I feel more than men, women are expected to do this, change the way of talking, change their lifestyle, change their dressing sense. And I'm very happy that women are standing up for themselves and they're not doing that anymore, because तुम जो कपड़े पहनते हो, तुम जिस तरह से बात करते हो, तुम्हारा सरनेम ये सब तुम्हारा आइडेंटिटी है, एंड यू कांट चेंज दैट फॉर समवन। कल अगर कोई मुझे बोलता है कि तेरा सरनेम चेंज कर, आई वोंट। It's very simple. Abhi, this doesn't mean I'm anti-men or anti-marriage. I believe marriage is a beautiful thing, and I would definitely like to marry someone who I love, who truly loves me one day. Where there is mutual respect, where there is freedom, where we are not controlling each other, telling each other what to do. देख, growth important है। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मेरा कुछ trait toxic है, और अगर मुझे मेरा partner बोलता है कि यार सोनाली तेरा ये आदत, इट्स वेरी हर्टफुल, इट्स वेरी टॉक्सिक, प्लीज वर्क ऑन दिस, आई विल फील गुड कि भाई ही इज हेल्पिंग मी ग्रो। बट इफ ही टेल्स मी कि यार, जैसे कि मैंने ये टॉप पहना है, ठीक है ना, सी ये मेरा माइंडसेट है, अगर मैं एक फैमिली फंक्शन में जाती हूँ जहाँ पे बड़े बूढ़े सब रहेंगे, आई वुड प्रोबेबली नॉट वेयर दिस, आई वुड वेयर समथिंग लाइक अ टी शर्ट और समथिंग लाइक दैट, नॉट बिकॉज they will judge me for this, but I feel I'm more comfortable, especially in a crowded place where there are people, elders and everything, to wear something like that. But अगर मैं क्लब जाती हूँ या फिर अगर मैं कैफे जाती हूँ with my friends, I will wear something like that. But again, when I'm stepping down of the building where I know कि नीचे बहुत सारा construction चल रहा है, there are all these men who keep staring, like they're gonna like rip the soul out of me. I feel comfortable wearing a jacket, especially जब तक मैं रिक्शा में या कैब में बैठती हूँ, because वो मेरा comfort है, ठीक है। But I do it because मेरा comfort है, मुझे कोई बोलता नहीं कि सोनाली ये मत पहन, वो मत पहन, that's when it becomes controlling. तो similarly जब बसंती को वीरू ने पूछा कि तू तेरा सरनेम चेंज कर, उसको लगा होगा यार भाई, दिस इज माय आइडेंटिटी, दिस इज माय एग्जिस्टेंस, हाउ कैन आई चेंज इट फॉर समवन। सो आई टोल्ड दिस टू वीरू, आई वाज लाइक आई डोंट इवन वांट टू वेस्ट माय एनर्जी एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, बट आई फील लाइक तूने इंटेंशनली नहीं किया है, you probably suggested her this thing thinking about all that legal things and everything, if you want to buy a property, because this guy, he's heavy on real estate, okay, इसको properties खरीदना वो सब का उसको बहुत शौक है, तो आई थिंक उसको आगे लगा होगा आगे जाके अगर मैं और मेरा वाइफ साथ में प्रॉपर्टी खरीदते, दिस विल बी बेटर, और उसने unintentionally किया। I'm not defending him, I'm not justifying what he did was right, it was obviously stupid and wrong, but I understand that was not the intent। तो जैसे ही मैंने उसको ये सब बोला, he saw it in a different way, he was like yeah, you know what, मैंने ऐसा सोचा नहीं। मैंने उसको वही बोला कि भाई ये सब जब ये सब होता है कि अरे it's just a surname, अरे कपड़ा ही तो है, सिर्फ कुर्ता ही तो पहनने बोल रहा हूँ, सिर्फ खाना ही तो बनाने बोल रहा हूँ, ये सारे sentences are limited only when it comes to women doing it, अगर यही रिवर्स होता है और अगर हम लोग आदमी को ये सब करने बोलते हैं, nobody will do that because they'll be like मेरे बाप ने तो नहीं किया, मैं क्या करूँ करके। तो आई फील इन अ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, वो म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे ही डिसरेस्पेक्टेड her by saying this, and I'm very happy that he realized that, because I know that he loves her truly। The day he met her, when he fell in love with her, he told me like how much, what kind of a woman she is, the way he appreciated her achievements, her behavior, her nature। I know that he loved her for her and not how she made him feel, because कभी कभी तुम किसी को पूछो, ठीक है, why do you love him or why do you love her, तो ये बंदी बोलेगी कि अरे ये मेरे लिए ये करता है, ये मेरे लिए ये करता है, सो बेसिकली शी इज ट्राइंग टू से कि यार ही इज मेकिंग मी फील दिस, दैट्स व्हाई आई लव हिम। So the love she has for that guy is only because of how he is treating her, not because of his nature। but इधर ये बंदा क्लियरली बोल रहा था कि why he loves her because of her individual traits। कल मुझे अगर कोई बंदा बोलते क्या सोनाली मैं तेरे से प्यार इसलिए करता हूँ because you are such a giver, you take care of me, you are so nice to me, I will be like okay, you love me because of how I'm treating you, but why do you love me, मेरे में क्या quality है that you love, that's how you understand, so I know that he loves her।
बट इसने चूतियागिरी किया है एंड आई एम लाइक इफ शी लीव्स यू you deserve it. You deserve it because you can't ask her such questions, man. You just can't. But you were like, you know what? No, I'm gonna fix it. मुझे मालूम पड़ी है कि मेरा गलती है. And थोड़ा छुट्टी है कि इतना बड़ा घोड़ा है कैसा देखो एक मैं तेरे को समझाना चाहिए सब यार मतलब हम दोनों एक ही एज के like do you understand like what you're doing? And you were like no I know I'm wrong. It was just a moment. I will go and fix it. He goes and he talks to her and she explains him the same thing जो मैंने उसको बोला. You know, she tells him that how that statement made her feel because marriage obviously it's pressurizing for men but it is also more pressurizing for a woman. वो अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर पे आ रही है and women से वो ज्यादा expectations होते हैं. मैंने तुम कितना if men are in the comments fighting and disagreeing with me, I'm not even going to entertain that because it is the truth. Men have that financial pressure that okay I want to keep her happy, I want to give her the best life, but women have financial plus so many अलग pressure कि oh you know I have to take care of his parents, I have to take care of my parents, his parents will have these expectations from me, मुझे ऑफिस भी जाना है घर भी संभालना है. भाई कितना प्रेशर होता है. So all this has to be understood by both the parties and इनके बीच में डिस्कशन हुआ. she was like I did not like it and she did not give a fuck to him. she was like I'm not gonna marry you. वो बहुत कन्विंस करता है उसको. he tries his best. वो उसको सॉरी बोलता है, वो उसको एश्योरेंस देता है कि मैं वापस ऐसा करूंगा नहीं. इतना कुछ होता है but she doesn't marry him. And I will not blame her for this because even though he unintentionally did it, he should have not. Okay, मतलब basic manners होता है. मैंने उसको वही बोला कि चूतिए basic manners होता है and how you talk to a woman. Okay, you can't just go and impose your restrictions and thoughts on her. You have to just ask her. अगर तू statement and तेरे को बात करने की एक तमीज होना चाहिए तो कुछ भी जाके उससे बात करेगा and you can't expect her to endure it. And I'm so proud of Basanti because she knows what she wants. You know, she demands, she commands self-respect. The minute she walks into a room, she knows what value she brings into a man's life. And if the man is not giving her that value, she will just get out of that situation because time waste नहीं करना उसका. I'm so happy because उसके बाद बसंती's parents, I spoke to Basanti and I supported her. I was like listen, मैंने explain किया उसको वीरू का perspective, but I also told her that listen, just because उसने unintentionally किया that doesn't mean that you have to forgive. It's totally your choice. And she was like, you know what Sonali, I'm not gonna because अभी अगर मैंने ये एंटरटेन किया ना चीज शादी के बाद दिस इज गोना मल्टीप्लाई. वॉट एवर ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन यू आर एंड्योरिंग व्हेन यू आर डेटिंग इट इज गोना मल्टीप्लाई आफ्टर मैरिज. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यू कांट बी लाइक ओ माय गॉड शादी के बाद चेंज होगा. मैरिज विल एक्चुअली वर्स इन दैट सिचुएशन. क्या इसका मतलब ये है कि यू हैव टू फाइंड द परफेक्ट पर्सन? नो, सब में आदतें बुरी होती है बट वो ट्रेट्स शुड नॉट बी समथिंग दैट विल ड्रेन यू, दैट विल एग्जॉस्ट यू और दोस आर टॉक्सिक ट्रेट्स. मेरे में भी ट्रेट्स है कुछ, जैसे कि जब मैं आर्ग्यू करती हूँ किसी के साथ आई गेट एंग्री एंड आई स्टार्ट गेटिंग अग्रेसिव एंड देन आई रियलाइज ओ माय गॉड दिस पर्सन डजंट डिजर्व यू नो टू बी येल्ड एट एंड दैट्स हाउ आई पुल माय सेल्फ बैक. तो सब में वो ट्रेट्स होते हैं, यू हैव टू वर्क ऑन दैट. ठीक है, दैट्स व्हाट मेक्स अ मैरिज ब्यूटीफुल. दैट व्हाट मेक्स योर इंडिविजुअलिटी आल्सो ब्यूटीफul. एंड शी डिड नॉट गिव मी अ चांस. अभी वो रिग्रेट करके बैठा है कि मैंने लवड़े लगा दी. एंड आई एम लाइक यस, sit with this that you fucked up a beautiful possible marriage, you know, and you lost a woman like her because trust me you are not going to get a woman like her. कुछ भी हो जाए. and I'm very happy कि वो रुकी नहीं इसमें, क्योंकि अगर वो रुकती तो probably ये और ऐसे बकचोदियाँ करता है शादी के बाद where either it would have been her outfits or her surname or anything like that, you know. and वॉट सब लोग बोलते हैं कि क्या चाहिए क्या औरत को, क्या चाहिए यार, क्या चाहिए. हम बेयर मिनिमम भी नहीं कर पाते आजकल के कुछ लड़के यार. बेसिक चीजें चाहिए. सेल्फ रेस्पेक्ट दो, मतलब थोड़ा सा हमें रेस्पेक्ट दो. don't try to control us. just be a good person who is a provider. का मतलब ये नहीं होता कि पैसे उड़ाओ. Provider and generous in every way. A woman should feel safe with you. You have to make her life easy and she will also make your life easy. एक्शन रिएक्शन का सिचुएशन है यहाँ पे. एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर एक औरत सती सावित्री होती है. यू हैव वॉच माय अदर वीडियोस अबाउट मैरिज जहाँ पे women have fucked up. So I am not saying that, but try to be that person, you know. Try to be that person who's not trying to change the identity of that other person. You want that person to improve, suggest that person, but don't try to control that person saying कि देखो ये करना पड़ेगा, तू ये की तो गलत है, वो की तो गलत है. Even women you know who are earning like 12-13 LPA having demands like I want a groom who earns 1 crore, if not कि मैं उसको reject करूंगी. And then मालूम पड़ता है कि वो groom ने उसको reject किया because
groom is not stupid. If he is financially stable, if he is a generous man, he will also see ki what kind of woman I want to marry. I want to marry a woman who is not very strategic about being with me. She's being with me for me, my personality, not just my money, you know. इधर इसने बकचोदी किया, मैंने तो उसको बोला, जैसे मैंने पूरा स्टोरी सुना कि मैं ये वीडियो अपलोड करने वाली, मैंने बसंती से बात की, बसंती वाले ब्रो अपलोडेड. वीरू वाज अ बिट मैड. ही डिड gave me permission to upload this, but he was like, यार सोनाली मैं ही गलत दिखूंगा. मैंने इट्स ओके ना चूती, मैं तेरा फोटो तो नहीं डाल रही थी, अगर मैं इधर तेरा फोटो डाल दूंगी तो तेरी तो लग जाएगी, वो तो नहीं कर रही हूँ ना मैं. बट आई फील लाइक शी डिड द राइट थिंग, एंड दैट्स हाउ अ मैरिज एंडेड. A marriage nahi, a to be marriage ended because of the stupid question. But but salute to Basanti. I love Basanti because she did not endure bullshit from him. And Viru, well, he has years to go. Like I think he has to work on himself, you know. Therapy seek करना पड़ेगा उसको. He has to work on his social skills, his manners and everything, because ऐसा बकचोदी करके वो कितना भी कमाए, वो कितना भी अच्छा दिखे, उसको कोई लड़की नहीं मिलने वाली है. Viru, I know you're watching this video, it's for you only. चूतिया मैं तेरे को ही बोल रही हूँ, सुधर जा, ठीक है? So this was a story, and I really hope you learned something from it, especially women and men who are trying to find prospects in an arranged marriage market. I know बहुत सारा scams चल रहा है, बहुत चूतिए लोग हैं, both the genders में, but just be what I told you. Just be yourself से नहीं होता. Improve where you have to, because life partner को मिलना, उनके साथ एक लाइफ शेयर करना हलवा नहीं होता. It's like a very serious choice and a decision, and you can fuck it up like that. Okay, so don't fuck it up like that. Okay, that's it. और क्या ही बोलूँ, मैं खुद भी सिंगल हूँ, तो सिंगल हूँ मैं. Am I single or was I in a relationship? Did I give you any hint? No, I did not give any hint. No story time on this. Okay, चलो ठीक है. I hope you learned something from it, and if you had some similar experience, let me know in the comments, whatever. And I will see you again in the next video. Bye bye.